You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. مظفر، اور آج آپ کی ملاقات براہ راست ہم مشال خان یوسفزئی صاحبہ سے کرانا چاہتے ہیں، مردان سے۔ آپ پشاور جو ہائی کورٹ ہے وہاں کی لائر ہیں، ان سے ہم آپ کی بات کرانا چاہتے ہیں۔ ویری ویل ایجوکیٹڈ، ویل پلیسڈ، اور کیونکہ خان صاحب سے، عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس وقت لائرز کی جو موومنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور جو نیب کی ترامیم ہیں ان کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے کہ یہ جو فیصلہ ہے جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا ہے وہ کتنا متاثر کرے گا عمران خان صاحب کو۔ مشال خان یوسفزئی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا فار بینگ ود اس۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ۔ یو آر مور دین ویلکم۔ آئی تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ویورز، ہمارے لسنرز کو اس وقت کی براہ راست صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ آپ کی جناب عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے اٹک جیل میں۔ تھوڑا پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو خان صاحب کا آپ کو کیسا لگتا ہے کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں، اور جیل میں یعنی آپ تو مہینے ہی گزر گئے کہ وہ جیل میں ہیں، تو تھوڑی ہمیں آنکھوں دیکھا حال بتائیے پلیز۔ جی بالکل، جب میری ملاقات ہوئی تو خان صاحب بہت ہائی اسپرٹ تھے، ہائی مورائل تھا ان کا، اور مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے لگا ہی نہیں کہ میں خان صاحب سے اٹک جیل میں بات کر رہی ہوں۔ مجھے تو ان کی باڈی لینگویج، ڈبل لینگویج، سارے اس سے صرف ایک ہی بات فیل ہو رہی تھی کہ جس ہم زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ہم زمان پارک میں خان صاحب کھل کے بات چیت کرتے تھے تو اسی طرح وہ اٹک جیل میں بھی کہہ رہے تھے۔ حالانکہ پابند سلاسل تھے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا تھا انہیں، ان کا وہی سٹینڈ تھا اور ان کی وہی باتیں تھی، باڈی لینگویج بھی وہی تھا۔ تو ماشاء اللہ ہی واز ڈوئنگ ویری ویل، اور مورال ان کا بہت ہائی تھا، اور میں تو کہتی ہوں اس سے زیادہ اسٹرانگ ہو گیا۔ اور جیسے ہماری ملاقات ہوئی تو خان صاحب کو سب سے پہلے میں نے بتایا کہ خان صاحب ہم اسٹور کے الیکشن جیتے ہیں، مبارک ہو۔ تو خان صاحب بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا پاکستان میں جب بھی کبھی جنرل الیکشنز ہوں گے پی ٹی آئی اسی طرح کی ریسیو کرے گی، کیونکہ عوام کا ووٹ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، کبھی تو الیکشن نہیں کرا رہے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے انہیں اپڈیٹ کی جو لیگل کیسز ہیں، اس کے علاوہ نیشنل اپڈیٹس کی، اوورسیز کی اپڈیٹس کی، انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کی اپڈیٹس کی۔ تو اوور آل تو میں بات کروں تو خان صاحب کا مورائل اتنا ہائی تھا کہ انہوں نے ایک ہی بات کی نا کہ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ اٹک جیل میں، اور کیونکہ جو ہے نا ان کا کاز ہے، جو ایک نظریہ ہے، جو جدوجہد ہے وہ اس نظریے کے لیے ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے نا اس نظریے کے لیے قربانی دی ہے اور وہ آگے بھی قربانی دی ہے، لیکن جو ان کا نظریہ ہے، جو جدوجہد ہے حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت کے لیے، وہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک وہ جو ہے نا ہم اپنے گولز اچیو نہیں کر لیتے، اور پاکستان کے عوام کا ان کا حقیقی رائٹ نہیں ملتا حقیقی جمہوریت کے لیے، تو یہ اسٹرگل جاری رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قربانی جو ہے نا پلیٹ میں نہیں ملتی، قربانی کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے آزادی کے لیے، اور قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ تو جو جیل میں بھی ہے اور جو باہر بھی ہے، سب سے ان کا یہی میسج تھا کہ ڈٹ کے کھڑے رہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم جو اپنے گولز ہیں وہ اچیو کریں۔ انشاءاللہ۔ اوور آل مطلب ہی واز ان اے ویری ہائی۔ صحیح، کیونکہ باہر بہت سی سینسیشنل نیوز بھی چلی پھر رہی ہے، اور آف کورس میں کاز کے بارے میں بات کروں گی، مگر جیل میں رہتے ہوئے ایک اگر قیدی بھی ہے اور ایک پولیٹیکل قیدی ہے تو اس کے کچھ ایک رائٹس ہوتے ہیں۔ خان صاحب ایز اے پلیئر بھی رہے ہیں، اور ایسا انسان اپنی ایکسرسائز اور باقی ایکٹیویٹیز میں بڑا پرومپٹ ہوتا ہے۔ پھر جیل میں اخبار اور میڈیا تک رسائی، یعنی ارد گرد کے بارے میں معلوم ہونا، یا ذہن کی غذا کسی کے پڑھنے کے لیے کتابیں ہونا، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کو باہر کی دنیا کے بارے میں کتنا علم ہے؟ کیا ان کو باقاعدہ روزانہ کے اخبار فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ملکی صورتحال سے باخبر رہیں؟ گو کہ پی ٹی آئی کی خبروں کو تو بالکل سینسر کر دیا گیا، بٹ پھر بھی ارد گرد کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے کیا وسائل ہیں ان کے پاس؟ دیکھیے اس ٹائم تو
कोई भी उनको और वसाइल नहीं दिए जा रहे, सिर्फ एक ही सोर्स है उनका जो लॉयर्स की फीस मिलने जाती हैं, तो वो खान साहब को अपडेट कर लेती है जो भी सूरत हाल होती है, चाहे वो लीगली हो, पॉलिटिकल वाइज हो, इंटरनेशनली हो, लॉयर्स के थ्रू एक यही सोर्स है। इसके अलावा जो है ना जो किताबें हाँ उन तक पहुंचाई जा रही है, वो भी खान साहब, क्योंकि इस टाइम वो जेल में है, उन्होंने कहा था कि उनको कुरान शरीफ दिया जाए और बुक्स पढ़ने के लिए दिए जाए ताकि वो अपना टाइम गुजार सके उससे, तो उनके लिए किताबें उन तक हम, जब मैं भी गई थी तो अपने साथ 10 किताबें लेकर गई थी। इस तरह जो भी लॉयर्स टीम जा रही है या कोई और किताबें भिजवाते हैं तो वो लॉयर्स टीम को दे देते हैं, वो आगे से पहुंचा देते हैं। तो बस सिर्फ यही है कि उनकी जो एक्टिविटी है वो सिर्फ बुक्स रीडिंग है जेल में, और जो उनका सोर्स है वो सिर्फ लॉयर्स है, इसके अलावा उनको कोई वसाइल नहीं दिए जा रहे। लेकिन फिर भी उनका जो वो बहुत हाई स्पिरिट में है, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, मैंने उनसे पूछा कि खान साहब जेल की क्या कंडीशन है, उन्होंने कहा है कि जी जेल तो बिल्कुल वैसे ही पुराना है, और जिस तरीके से पार्टीशन से पहले की जेल है तो उसकी इसमें कोई नई फैसिलिटीज नहीं है, और जो है सेल भी वही है, रात को कीड़े भी होते हैं क्योंकि खुला माहौल है, बारिश होती है तो बिस्तर भी गीला होता है। पहले कुछ दिनों में एक बड़ी सी लाइट है वो 24 घंटे ऑन रखी गई थी, लेकिन खान साहब कहते कि मैं एडजस्ट हो गया हूँ, और बाहर आवाम को बताएं ये मेरे लिए 5 स्टार से कम नहीं है, कि बाहर गुलामी है, और गुलामी तो मैं कभी भी कबूल नहीं करता, मौत कबूल करूंगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करता। तो अच्छा है कि मैं जेल में रहूं। दूसरा तो ये आपको पता है, ये पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जो केसेस है ये तो लीगली है ही नहीं, ये तो पॉलिटिकल केसेस चल रहे हैं। तो पॉलिटिकल केसेस है तभी तो जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, पहले सिर्फ पिटीशन नहीं फिक्स होती, पिटीशन फिक्स हो जाए तो जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, जज साहब आ जाए तो प्रोसिक्यूटर छुट्टी पे चले जाए, प्रोसिक्यूटर स्टेट प्रोसिक्यूटर्स आ जाए, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर इन्होंने हायर किए वो छुट्टी पे चले जाते हैं। तो मतलब एक लंबा ड्रामा चल रहा है, जो उनको पता था कि मतलब ये तो पॉलिटिकल केसेस हैं, ना इनके पास कोई विटनेस है, ना एविडेंस है, ना कोई और जा रहे हैं इन केसेस में, इसलिए तो ये टैक्टिक्स इख्तियार कर रही है। तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ इसलिए कि उनको टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री किया जाए। मैंने कहा खान साहब बात हो रही है, कोई डील हो। खान साहब ने कहा किस चीज के लिए डील होगी? डील तो वो लोग करते हैं जिनकी बाहर कोई जायदादें होती है, जिन्होंने बाहर जाना होता है। मेरी तो जिंदगी मौत पाकिस्तान में है, और मैं पाकिस्तान से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन में किसी बात पे बात होगी तो सिर्फ इस बात पे बात होगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए, इसके अलावा किसी और बात पे ना बात होगी ना डील होगी ना। तो मतलब उन्होंने तो वो फुली उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड था, और ओवरऑल उनका यही है कि बस 1,000 केसेस बनाते हैं तो 1,000 केसेस बना लें, हम कानूनी जो है ना ये लड़ाई इसी तरह लड़ेंगे, और बाकी अगर कोई इससे कोई सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं तो उनको सियासी मकासद इससे मिलेंगे नहीं। तो अच्छा है कि इंसाफ के निज़ाम को सबोटेज ना किया जाए, इंसाफ के निज़ाम को, पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम को तो आजकल आप देख रही हैं पूरी दुनिया में तमाशा बना दिया गया है, और हमारी हर जगह जगह साई हो रही है। बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग जो गिरफ़्तार हुए और बेल होने के बाद फिर गिरफ़्तार हुए और फिर गिरफ़्तार हुए, और बाद में वो तमाम के तमाम लोग आए, उन्होंने एक गिवन स्क्रिप्ट को पढ़ा, एक ख़ास जगह पे आए और आके पीटीआई से अलग हो गए या सियासत छोड़ दी या किसी और पार्टी को ज्वाइन किया। खान साहब को आपने कहा कि आजकल के अखबारों से और ख़बरों से बिल्कुल बेखबर रखा जा रहा है, उनके लॉयर सिर्फ बताते हैं, मगर क्या अंदरूनी तौर पर कोई ऐसी शुनीद या उन्होंने बताया कि कुछ बड़े इदारे उनसे मिल के उनको पीटीआई को छोड़ने का या सियासत को छोड़ने का दबाव डाल रहे हैं, यानी अंदर से वो अरकान जो बाकी लोगों को प्रेशर डाल रहे हैं वो उन पे कोई प्रेशर डाल रहे हैं? नहीं, उनसे देखें जेल में किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई है, मैंने उनसे बात की थी, और क्योंकि जो मुलाकात की है तो उनको पता है कि खान साहब एग्री नहीं कर। मैं आपको बात बता रही हूँ कि वो उस टाइम उस मीटिंग रूम में हम 4 लोग बैठे हुए थे, वो खुल के बात कर रहे थे। अगर मीटिंग रूम बंद भी था तो शायद जिन्होंने बंद कराया था उन तक खान साहब का मैसेज पहुंच गया होगा। ये खान साहब की एक ही बात है कि पाकिस्तान में फ्री इलेक्शन होंगे तो बात होगी, उसके अलावा बात नहीं होगी। अभी जिन्होंने उनको जेल में रखने की जिनकी ख्वाहिश थी उनका शौक पूरा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है ना उनके मकासद पूरे नहीं हो रहे, या जो उनका एजेंडा है वो पूरा नहीं हो रहा। हाँ,
मुश्किलात जो पेश आ रही है वो पाकिस्तान की आवाम को पेश आ रही है, और उधर भी खान साहब ने वही बात की कि इस टाइम पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो। तो खान साहब ने सिर्फ इस टॉपिक पे बात की, फिर उसके अलावा खान साहब ने एक मरतबा भी नहीं कहा कि कब उनकी जमानत हो रही है, कब उनको रिहाई मिल रही है, उस पर तो उन्होंने डिस्कशन ही नहीं की, क्योंकि उनके माइंड में ये है, और ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये सियासी केसेस है किसी 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 स्पेसिफिक गोल्स के लिए, किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए। तो उसपे तो उनको वो बहुत ही क्लियर है ना कि मतलब आप जो मर्जी कर रहे हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशन, कोई डील नहीं होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो बात होगी, वरना बस आपने मजाक उड़ाने हैं पूरे मुल्क का, तो बस आप करें अपना शौक पूरा करें। वैसे भी हम पूरी दुनिया में हमारी जगह सही हो रही है, और आप यकीन करें अभी तो हम भी जब जजेस के सामने पेश होते हैं तो हम उन्हें बाकायदा बताते हैं कि आपके फैसलों की वजह से हमारे जो काले कोट है उसकी तस्दीक हो रही है, और जो है ना हम शर्मिंदा हैं जो आप भी कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी बात होने के बाद अभी इंडिया में जो G20 की समिट हुई है और मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया से वहाँ पे पहुँचे हैं, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं उतरे, तो आपने इस समिट, क्योंकि ऑफ कोर्स दुनिया के हालात पाकिस्तान के ऊपर बरह रास्त असरअंदाज हो रहे हैं और बहुत पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है उसी ने पाकिस्तान को प्रॉब्लम में डाला हुआ है, तो इसके बारे में खान साहब ने कुछ G20 समिट और मोहम्मद बिन सलमान, डू यू थिंक ही फेवर्स खान साहब? जी, मैंने खान साहब को खुद G20 समिट के बारे में बताया, तो जो सबसे बड़ी बात मैंने उन्हें बताया कि जी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस आए हुए थे, जो बाइडेन साहब, और उनको जो है ना नरेंद्र मोदी साहब ने खुद रिसीव नहीं किया था, बल्कि उनको ऑफिशियल प्रोटोकॉल के मुताबिक रिसीव किया गया था। तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल खुद मुख्तार जो है ना कौमें वो वही ऑफिशियल प्रोटोकॉल से अडॉप्ट करती है। हमारे साथ क्या होता है कि एक साइफर आता है, हमें एक डिप्टी सेक्रेटरी धमकी लगाता है और पूरी रियासत लेट जाती है। उन्होंने ये कहा कि जिस साइफर केस में आज मेरी कस्टडी दी गई है, जुडिशियल रिमांड दिया गया है, चाहिए तो ये था कि इस सारे एपिसोड के रिस्पॉन्सिबल लोग थे उनको अकाउंटेबल करते हैं। और जो ये सारा ड्रामा चल रहा है उन्होंने बाकायदा नाम लेके कहा कि इसके 3 लोग हैं और उनको अकाउंटेबल करना चाहिए। तो उल्टा जो है ना इन्होंने जिस मतलब मुझे इस चीज में करने की, मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि साइफर आया था, मुदाखलत हुई थी, और पाकिस्तान के जो हमारे मुहाफिजों को ये मुदाखलत नाकाम करनी चाहिए थी। उन्होंने एक और बात करने का कि जी मैं तो अवाम का चुना गया नुमाइंदा था, अवाम के वोटों से प्राइम मिनिस्टर बना था, मैंने तो लीगली साइफर को डिक्लासिफाई करा के उसके ट्रांसलेटेड फॉर्म भिजवाई थी चीफ जस्टिस साहब को भी, और बाकी भी जो ओरिजिनल साइफर है वो तो फॉरेन ऑफिस में अभी भी पड़ा हुआ है जो कोडेड फॉर्म में होता है। तो उन्होंने कहा मैंने तो अवाम को बताना था, इतनी बड़ी साजिश हो गई है और उनको गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। उन्होंने यही कहा कि हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, गुलाम कौमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती, वो हमेशा गुलाम ही रहती है। तो अभी जो इतनी लंबी जदोजहद चल रही है और इतने पाकिस्तान के डिफाइनिंग मूवमेंट्स पे आ गई है कि जो अब खान साहब अंदर है, आप देख रही है, और पीटीआई की बाकी लीडरशिप भी अंदर है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान की आवाम ने वो जदोजहद जारी रखी हुई है, और 46 से ज्यादा दिन हो गए और वो चीज अभी भी कंटिन्यू है। तो हमने यही कहा ना कि हमारे पास 2 रास्ते, एक तो हमने गुलामी का रास्ता है कि बस हम गुलाम रहे और बस चुप करके बैठ जाए, हमारे साथ जो मर्जी होता रहे, या हम हकीकी आज़ादी और ला इलाहा इल्लल्लाह के पैरोकार हैं, हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। तो हमारे पास तो दूसरा रास्ता है कि हम रेजिस्टेंस करें, हम गुलामी को कबूल ना करें और हम अपनी जद्दोजहद जारी रखें। तो उन्होंने कहा कि हमने दूसरा रास्ता चुना हुआ है, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और पाकिस्तान जो इस गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है उसको हम निकालेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने बताया था कि लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से बात की थी, लॉयर्स की सपोर्ट पीटीआई के साथ कितनी है, और बल्कि आप ही से मैं पूछना चाहती हूँ कि जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने जो रिवर्ट किया है, अपना जो फ़ैसला दिया है, उसमें तकरीबन 26 जमातें तो फंसेंगी, मगर मेरा ख़्याल है कि पीटीआई के ऊपर भी ये बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होगा खान साहब के केस पे, क्योंकि बाकी तोशाखाना केस भी खुल गए। तो इन 2 चीज़ों को अगर आप कवर कर दें तो बड़ी मेहरबानी। जी जी, पहले तो मैं बताऊं आपको कि पीटीआई की जो आईएलएफ है, इंसाफ लॉयर्स फोरम, वो पीटीआई की लीगल फोर्स है। वो पाकिस्तान के हर सूबे में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर यूनियन काउंसिल लेवल, लेकिन इस टाइम जो मूवमेंट चल रही है वो आईएलएफ की नहीं चल रही,
वो पूरे पाकिस्तान के वकला की चल रही है, बार एसोसिएशन की चल रही है। देखिए ये जो लड़ाई है ये तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, ये पाकिस्तान में इस टाइम आपको आइन भी कहीं नजर नहीं आ रहा, आपको कानून भी कहीं नहीं आ रहा। और पाकिस्तान के वकला ने अगर 2007 और 8 की बात करें तो हमेशा आइन की बात की है, कानून की बात की है, और आइन और कानून के मुहाफिज के तौर पर उन्होंने अपना किरदार निभाया है। लेकिन इस टाइम जो है ना, जिस तरीके से आइन और कानून को मअतल किया गया है, तो उस वजह से ये लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई है और पाकिस्तान के बारों में हो रही है। कल लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल भी की थी और एक बहुत बड़ी रैली निकाली, जिसको आप पाकिस्तान में मीडिया में सेंसर किया हुआ है, लॉयर्स मूवमेंट को सेंसर किया हुआ है। लेकिन एक सोशल मीडिया पे आप देख सकती है कि बहुत बड़ी रैली थी, उसमें लॉयर्स की एक ही डिमांड थी कि पाकिस्तान में 90 डेज में इलेक्शन कराए जाए। सारे मसाइल का एक ही हल है कि पाकिस्तान में 90 डेज में इलेक्शन कराए जाए। उसी मूवमेंट को आगे जारी रखते हुए कल केपीके में शारदा बार एसोसिएशन ने एक लॉयर्स कन्वेंशन की कॉल ली हुई है। तो इस टाइम पाकिस्तान के हर बार में, हर डिस्ट्रिक्ट के बार में ये मूवमेंट चल रही है और वन बाय वन कन्वेंशन हो रहे हैं, और लॉयर जो है ना वो अदालतों के साथ साथ अब सड़कों पे भी आ गए, उन्होंने लीड ले ली है, क्योंकि इसके बगैर हो ही नहीं सकता ना। पाकिस्तान में आइन और कानून नहीं होगा तो कैसे कैसे बन सकता है। तो इसलिए इस टाइम वक्त की ज़रूरत है कि लॉयर्स आगे आते हैं, और लॉयर्स आगे आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो वो एक्चुअली पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव की कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद एक बाकायदा एजेंडा दिया गया कि जो हम मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हैं, हम मिलिट्री कोर्ट्स को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान में 90 डेज में इलेक्शन चाहते हैं, और हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। हमारी डिमांड्स मतलब, वरना हम रेजिस्टेंस शो करेंगे और खुलेआम रेजिस्टेंस शो करेंगे। उसके अलावा आपने आज की जजमेंट की बात की, मैं थी तो इसमें जो है ना खान साहब पिटिशनर थे। ये खान साहब की तरफ से ये केस किया गया था, और ख्वाजा हारिस साहब हमारे वकील थे। तो हमने जो NRO 2 था उसको चैलेंज किया हुआ था, और हमने नेब के तमाम तरामीम को चैलेंज किया हुआ था। तो जब खान साहब जब ये तोशा खाना और नेब के केसेस चल रहे थे अलकादिर, तो लीगल टीम ने खान साहब को बताया भी कि क्योंकि ये तो 50 करोड़ से कम है, तो अगर आप पिटीशन विड्रॉ करते हैं तो मतलब हमारे केसेस भी खत्म हो जाएंगे दोनों। लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, उस पर मैं अपने आप को कोई फायदा नहीं दूंगा। मेरे जो केसेस है वो मैं मेरिट पे लड़ूंगा, और मैं वो जीत भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है उसमें कोई जान ही नहीं है, मैंने ऐसा किया ही नहीं। लेकिन मैंने कहा कि ये जो पिटीशन है ये मैं करूंगा, और इसको इंटैक्ट रख के हमने वो पिटीशन फाइल की, हम वो लड़े सुप्रीम कोर्ट के फॉरम पे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक डिटेल फैसला आ गया है। पाकिस्तान सिर्फ खान साहब की नहीं, पाकिस्तान की आवाम की जीत है, क्योंकि NRO 2 अपनी मौत आप मर गया है। लेकिन जो है ना, अब ये सारे 3 बातें होती थी कि एक तो 50 करोड़ से कम करप्शन करने वालों को क्लीन चिट दी दी थी कि आपने जो करप्शन, वो तो करप्शन ही नहीं काउंट होगी, लेकिन अब जब 1 रुपए की भी करप्शन होगी तो वो करप्शन होगी। दूसरी बात ये था कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो एक्यूज्ड होगा उस पे होगा। तीसरी बात जो सबसे अच्छी डेवलपमेंट है इसमें, तो जितने भी नैब रेफरेंसेस डिस्पोज ऑफ कराए गए थे या खत्म कराए गए थे, उनको 7 दिनों के अंदर अंदर तमाम मुतल्लिका अदालतों में वापस भिजवाने का कहा गया है, और जहाँ से प्रोसीडिंग्स पॉज हुई थी या खत्म हुई थी, वहीं से सारी प्रोसीडिंग्स दोबारा से शुरू होगी। तो मतलब जिनको रिलीफ मिला था वो सारी रिलीफ खत्म हो गए। NRO 2 खत्म हो चुका है इस टाइम। और एक खुशाइंदा बात इसमें ये है कि जो आपने भी सुना होगा कि पाकिस्तान में एहतसाब की बातें चल रही है, एक एक नारे लग रहे हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पे एहतसाब करवाने वालों को एक ओपन ग्राउंड दे दिया। अब पाकिस्तान के हर इदारे से एहतसाब शुरू होके सियासी लोगों का भी एहतसाब शुरू होना चाहिए। देखें, पाकिस्तान की अस्करी जो अशरफिया और पाकिस्तान की सियासी अशरफिया, इन दोनों की गठजोड़ ने ही पाकिस्तान को इस हाल में लेकर आए। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान की सियासी अशरफिया नहीं है, पाकिस्तान की अस्करी अशरफिया भी इसमें इन्वॉल्व है। तो जब अस्करी अशरफिया या जिन लोगों ने करप्शन की है, वहां से एहतसाब शुरू होगा, और फिर सियासतदानों तक आएगा, और जितने भी है उनको अकाउंटेबल किया जाएगा, और उनको सजाएं होगी।
तो ही बात बनेगी, तो ही अवाम कन्विंस हो सकती है। ये ना हो कि ये जो नैब की जो अमेंड ये जो अभी है, तो इसको किसी सियासी मकासद के लिए यूज़ किया जाए तो अवाम तो नहीं मानेगी। तो अच्छा है सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड दे दिया है, आप एहतसाब करें, पाकिस्तान के हर इदारे में एहतसाब होना चाहिए, पाकिस्तान की सियासत में एहतसाब होना चाहिए। क्योंकि देखिए हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हम 75 ईयर्स से हम बहुत सफ़र हुए हैं, पाकिस्तान की आवाम बहुत सफ़र हुए, अमीर तरीन बन गए हैं, गरीब लोग और गरीब तरीन बन के पिस गए हैं। तो जब तक ये गठजोड़ खत्म नहीं होगा, जो है ना एहतसाब नहीं होगा, तो चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकती। तो अच्छा है सुप्रीम कोर्ट ने उमर अता बंदियाल साहब ने जाते जाते एक ओपन ग्राउंड दे दिया है। अब देखते हैं अच्छे अच्छे खासे लोगों का अब इसमें इम्तिहान है कि पाकिस्तान में कैसे एहतसाब होता है और कितना एहतसाब होता है। तारड़ जो मुस्लिम लीग नून के हैं, उनकी लाइसेंस की कोई जेपडी के चांसेस हैं? जी, वो कल लाहौर हाई कोर्ट ने एक रिक्विजिशन पास की है, एक मुतफ़िका करारदाद थी और उन्होंने कहा है कि जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो है ना मिलिट्री कोर्ट को वोट दिया था और आपको पता है पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि काला कोर्ट हमेशा से मिलिट्री कोर्ट या जो आउट ऑफ द वे उनकी पावर्स है उसके खिलाफ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस वजूहात की बिना पे उनका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए और उस पर प्रोसीडिंग्स चल रही है। लेकिन जो है ना आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपने ग्रुप को जितना नुकसान पहुंचा दिया, तो अब उनके ग्रुप के लोग भी यही चाहते हैं कि बस वो साइड लाइन हो, क्योंकि आसमा जहांगीर साहिबा के बाद इन्होंने इंडिपेंडेंट ग्रुप को लीड किया था और उसका ऐसा हशर नशर कर दिया है कि उनकी क़यादत चाहिए ही नहीं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से लेकर लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर बार, पंजाब बार, हर जगह से उनको शिकस्त फाश हुई है और उनका जो है ना खत्म हो चुके हैं, अब उनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो मेरा पहले लास्ट से वो क्वेश्चन अपनी आपसे जो अब यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज वी आर गेटिंग आउट ऑफ टाइम, खान साहब के साथ कोई बैकडोर डील का प्रेशर नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट उनको कहीं टॉर्चर करके या कोई प्रेशर दिलवा के कोई बयान लेना चाहती है या रिज़ाइन करवाना चाहती है उनसे? नहीं, देखिए मैंने खान साहब से बाकायदा पूछा, मैंने कहा खान साहब बाहर डील की बात हो रही है। खान साहब ने कहा किस चीज़ के लिए डील? मुझसे तो किसी ने बात ही नहीं की और ना कोई डील होगी। ये मैं बात करूँगा ही नहीं, इलेक्शन के बगैर तो मैं किसी और बात पे बात करूँगी ही नहीं। हाँ, वो थोड़ी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बुशरा बेबी को बार-बार बुलाया जा रहा है। वो इन्वेस्टिगेशन जॉइन करती है तो अगले दिन उन्हें दोबारा बुलाया जाता है। वो जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँचती है तो 6 घंटे उन्हें ऐसे ही बिठा दिया जाता है। 6 घंटे बाद उनसे 5 मिनट का सवाल पूछा जाता है और फिर भिजवा दिया जाता है, अगले दिन फिर बुलाया जाता है। मतलब ये ड्रामा चल रहा है ताकि उनको तंग किया जाए। इसके अलावा तो कोई और बात हुई नहीं। लेकिन देखिए सारों बातों की एक ही बात, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो ही कोई बात होगी। इसके अलावा तो कोई भी चारा नहीं है। हम जो है ना आगे से आईएमएफ की जो हमारी डील हुई थी वो भी सर पे है, दिसंबर वाली बात है। यहाँ पे अवाम की ये हालत है। हम हर तरफ से आगे वो कहते हैं ना आगे कुआं पीछे काई वाली बात है। इस टाइम एक ही हल है कि पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन कराए जाएँ, जो ताकत है वो अवाम के रोज़े नुमाइंदों को दी जाए। बहुत शुक्रिया। खान साहब की स्पिरिट्स हाई हैं, कोई बैकडोर मीटिंग्स नहीं हो रही मेरी आप लोग और मैं खुद नहीं ये कह रही। आई जस्ट ब्रॉट इन मोहतरमा मिशाल यूसुफजई साहिबा, जिनकी खान साहब से मुलाकात हुई, उनके केस को देख रही हैं, लॉयर से मुलाकात कर रही हैं। मिशाल बहुत शुक्रिया। एंड ये फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए हम आपको दोबारा भी बॉदर करेंगे और आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। You are watching E Awaaz TV, Voice of Community.